Hello friends, this is Ashif Iqbal from Holy Home. I'm going to teach SST class 6 chapter number 2 latitudes and longitudes. आज हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ओके. Through most of the recorded history, people thought that the shape of the earth was flat like a plate. अधिकांश इतिहास के दौरान लोगों ने सोचा कि पृथ्वी की आकृति किसी प्लेट के समान समतल है. Today we know that the shape of the earth is spherical body which is slightly flattened at the poles, and because of its peculiar shape it is called geoid. Its circumference is about 40,000 km and diameter is 12,756 km across the equator. It is difficult to grasp the size of the earth. The model showing the accurate shape of the earth is called the globe. It is true model of the earth because it is three-dimensional. आज हम जानते हैं कि पृथ्वी का आकार गोलाकार होता है जो ध्रुवीय पर कुछ चपटा होता है और विशेष आकार का कारण इसे भूम आकृति कहते हैं. इसकी परिधि लगभग 40,000 किलोमीटर है और व्यास भूमध्य रेखा का पार 12,756 किलोमीटर है. पृथ्वी का आकार को समझने मुश्किल है. पृथ्वी के सही आकार को दिखाने वाला मॉडल ग्लोब कहा जाता है. सब कोई जानता है ग्लोब, ठीक है. पृथ्वी का सही मॉडल है क्योंकि ये 3 आयामी में है, मतलब 3 डायमेंशन में है. ओके. नेक्स्ट, लुक एट द फिगर अबव द see how the globe rests on its frame. This is known as the slanting. ग्लोब ऊपर दिए गए आंकड़ों को देखिए कि दुनिया अपने फ्रेम पर कैसे निर्भर है. यह पोजीशन तिरछा कहलाती है, ठीक है. लार्ज ग्लोब were used in the past but they were difficult to carry. अतीत में बड़े ग्लोब को इस्तेमाल किया गया था लेकिन उन्हें ले जाना मुश्किल था, ठीक है. बहुत मुश्किल था उस समय. But now small ones pocket for folded globes are available which can be planted and used by filling air like balloons and pillow. A globe is a model of the earth. It shows the flattening of continents and oceans and distance between places on earth. The curved surface of the earth cannot be represented on a flat surface without some distortion, as there is no point of the reference from which the measure relative position to the other points. परंतु अब छोटे पॉकेट या मुड़े हुए ग्लोब उपलब्ध हैं जिन्हें चपेट करके हवा भरकर गुब्बारे और तरीके की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है. एक ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है. ये महाद्वीपों और महासागरों के पैटर्न और पृथ्वी पर स्थानों के बीच की दूरी को दर्शाता है. कुछ विशेषण के बिना पृथ्वी की घुमावदार सतह को किसी समतल सतह पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता क्योंकि संदर्भ कोई बिंदु नहीं है जिसे सापेक्ष स्थिति और अन्य बिंदुओं में मापा जा सके, ठीक है. In order to overcome the problems, we need certain points of reference and lines to find out the location of place. The globe is shown to rotate on a line passing through its center. This line is known as axis. The spinning of the earth on its axis provides natural points of reference, the North Pole and the South Pole. They form the basis for the geographical grid, a network of intersecting lines drawn from purpose of fixing the location of various surface features. The grid consists of 2 sets, line horizontal and vertical. Okay. इस समस्या से निपटने के लिए हमें स्थानों की अवस्थिति का पता लगाने के लिए संभव तथा पंक्तियों के कुछ बिंदुओं की आवश्यकता है. ग्लोब को केंद्र के
से गुजरते एक रेखा पर घुमाने के लिए दिखाया गया है। इस रेखा को अक्ष कहा जाता है। इस पृथ्वी के अक्ष पर कटाई के दो प्राकृतिक संबंध दिए गए हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसे हम लोग नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। वे भौगोलिक ग्रिड का आधार विभिन्न सतहों के स्थान को निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रतिचित्रित रेखा का एक जाल बनाती है। ग्रिड में दो सेट लाइन होते हैं, ठीक है, जिसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कहते हैं। लैटिट्यूड्स, the horizontal circular lines running east west and parallel to each other are known as latitudes. The line drawn midway between the north pole and the south pole is called equator. It is largest circle and hence is called a great circle. All other parallels get smaller in size in proportion to their distance from equators towards the pole. These imaginary lines running east west are commonly known as parallels of latitudes. These are measured in degrees. The value of equator is 0 degree north and the latitudes of the pole are 90 degree north and are 90 degree south. Any circles contain 360 degree. The equator furnish a baseline at all point 90 degree from the poles. एक दूसरे के समांतर क्षैतिज वृत्तीय रेखाओं अक्षांशों के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव ओले के बीच में खींची गई रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है। यह सबसे बड़ी वृत्त है और इसलिए हमें इसे महत्वपूर्ण कहते हैं। अन्य सभी समांतर भूमध्य रेखा से होकर ध्रुवों की ओर से दूरी के अनुपात में छोटे होते हैं। इन काल्पनिक रेखाओं को पूर्व पश्चिम की ओर अग्रसर समानांतर आकांक्षाओं की समानता कहा जाता है। इनको डिग्री से मापा जाता है। भूमध्य रेखा का मान 0 डिग्री है और इसकी आकांक्षा 90 डिग्री और 90 डिग्री कोण है। किसी भी वृत्त को में 360 डिग्री है। भूमध्य रेखा सभी बिंदुओं पर आधार रेखा का निर्माण ध्रुव से 90 डिग्री पर करती है। ओके, नेक्स्ट। The distance from the equator to the equator of the pole is 1/4 of a circle around the earth. It will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and the 90 degree south latitude mark the south pole. ओके, भूमध्य रेखा जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं। भूमध्य रेखा से ये तो किसी खंभे की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का चौथाई भाग है। ये 360 डिग्री में से एक चौथाई अर्थात 90 डिग्री को नापी है। इस प्रकार उत्तर अक्षांश उत्तरी ध्रुव के चिन्ह है और दक्षिण अक्षांश के दक्षिण ध्रुव का चिन्ह है। ओके, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, आकांक्षाओं का समांतर। On a globe we see a number of circles all running parallel to the equator. The distance of the place north or south of the equator is measured by an angle. This angle is latitude of that place. These circles are called parallels. The parallels of latitudes in the northern hemisphere are labeled N with their values in degrees. The parallels or lines of latitudes in the southern hemisphere are followed with a label S. This avoid confusion. There are 4 important parallels of the latitudes. Okay. भूमंडल में हम भूमध्य रेखा के चल रहे सभी सर्किट देखते हैं। भूमध्य रेखा और उत्तरी या दक्षिण स्थान की दूरी को एक कोण से मापा जाता है। यह कोण उस स्थान पर अक्षांश है। इन हल्कों समांतर कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में आकांक्षाओं के समांतर उनके मूल्य को मात्राओं में अंकित किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में समांतरों या आकांक्षाओं की रेखा के साथ लेबल किया जाता है। अक्षांश के 4 महत्वपूर्ण समांतर हैं। A circle running 23
डिग्री 1/2 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के से 1/2 डिग्री नॉर्थ उत्तर में चलने वाला एक चक्र को कैंसर कहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है। नंबर 2, द सिमिलर वन इज द साउथर्न हेमिस्फीयर is 1/2 डिग्री साउथ एंड आर कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। दक्षिण गोलार्ध में इसी तरह एक और 1/2 डिग्री दक्षिण है और मकर राशि उपज कहा जाता है, जिसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। द आर्टिक सर्कल इज सिचुएटेड एट द 66 1/2 डिग्री नॉर्थ। आर्टिक सर्कल 63 उत्तर में स्थित है, ठीक है। एंड द अंटार्कटिक सर्कल इज सिचुएटेड एट द 66 1/2 डिग्री साउथ एट रेस्पेक्टिवली। और अंटार्कटिक सर्कल क्रम 66 1/2 डिग्री नॉर्थ दक्षिण में स्थित है। ओके, द हॉट और द टॉरिड जोन, it lies between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. This zone lies between 0 degree minus 22 1/2 degree north and to 0 degree to 22 1/2 degrees south of the equator. The sun shines directly overhead twice a year and the sun rays are never very oblique. Therefore, this zone receives maximum isolation and is the warmest of a temperate zone. ये कैंसर और मकर राशि के उसका बिंद के बीच स्थित है। ये प्रक्षेत्र 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण में भूमध्य रेखा के बीच स्थित है। सूर्य वर्ष में 2 बार सीधे ऊपर से चमकता है और सूर्य की किरणें बहुत तिरछी नहीं होती, इसलिए इस प्रदेश में अधिकतम उष्णता प्राप्त होती है तथा ये एक तापमान क्षेत्र में सबसे गर्म होता है। द टेम्परेट जोन, okay, in the north and the south of the torrid zone, it lies between the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and between the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere. It lies between 23 1/2 degree north to the 66 1/2 degree north and the 23 1/2 degree south to 66 1/2 degrees south. The amount of heat received goes on decreasing towards the pole. This sun is never overhead in this zone. It is neither very hot in summer nor very cold in winter. It is therefore called a temperate zone. Okay, temperate zone. उष्ण क्षेत्र के उत्तर में दक्षिण में ये कैंसर और उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक तथा मकर के दक्षिणी गोलार्ध के बीच स्थित है। ये 23 डिग्री उत्तर और 66 1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर और 23 डिग्री 23 1/2 डिग्री दक्षिण से 66 1/2 डिग्री दक्षिण के बीच स्थित है। ऊष्मा की मात्रा खंभे की ओर कम हो जाती है। इस क्षेत्र में सूर्य कभी भी ऊपर नहीं है। ये ना तो गर्मियों में बहुत गर्म होती है ना ही सर्दियों में बहुत ठंडी है, इसलिए इसे हम समशीतोष्ण जोन कहा जाता है, जिसे हम लोग टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, ओके। द कोल्ड एंड फ्रिगिड जोन, it lies between the Arctic and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere. It is the coldest part of the earth, where the sun rays are always most oblique. During the part of the year the sun rays are not at all received. As such, temperature zone in this zone are very low. The summers are cold and the winter intensely cold. These are called frigid zone. Okay, हम लोग पढ़ेंगे frigid zone किसे कहते हैं।